नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से 80 से ज़्यादा हलाकतें, सैकड़ों दबे होने का खदशा। राहतकारी ऑपरेशन जारी। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने किया रंज का इजहार, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। राहुल गांधी ने मुआवजे में इजाफे का किया मुतालबा। हावड़ा मुंबई मेल झारखंड में हादसे का शिकार, 18 डब्बे पटरी से उतरे, कई मुसाफिर जख्मी, 2 की मौत। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने रकम की तारीख, एक ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी बन गई। सरबजोत सिंह के साथ किया कमाल। अब खबरों की तफसील पेश है। केरला के वायनाड जिले में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। आज सुबह मेबडी के करीब मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हुई। मंदकी चोलमा कस्बे में सैकड़ों मकानात, गाड़ियां और दुकानें पानी में डूब गईं। इस हादसे में मुतादिद अफराद हलाक, जबकि सैकड़ों अफराद फंसे हुए हैं। केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि कई टीमें मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए भेजी गई हैं। ताहम शदीद बारिश की वजह से राहत और बचाव कामों में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। We are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and many are injured. So, they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also. We have ensured that. Goes out to all those families, and what I have been told is that the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. Otherwise, what other reaction can? केरला के वायनाड में मूसलाधार बारिश की वजह से देर रात 4 मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 90 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद के लापता होने की इत्तला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने केरला के वायनाड के कुछ हिस्सों में मिट्टी के तोदे गिरने से हुए जानों के इतलाफ पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। इन्होंने केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन से भी बात की और वहाँ की मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने PM NRF के मरने वालों के लहाइकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये की नकद इमदाद का भी ऐलान किया। हुक्काम ने इस वाक़े को इंतहाई खौफनाक करार दिया है। NDRF, 2 teams of defense service, defense security corps, 1 Navy river crossing team. Then we have also requested for MEG, engineering task force assistance from Army. So they are moving in from Bangalore. Primary team has reached Mangalore, and they will reach Wayanad. They will do a reconnaissance, and then they will requisition the services of ETF with the Bailey bridges. So, for moving all these troops, we also have aircraft ready at Hindon. 2 aircrafts are flying in Trivandrum, and Army from Pangod is also sending 2 columns with bouts to Calicut as an advance measure, so that if you need to replenish human resource, then that is also available. Repeated landslides, and the landslides are reported in Kozhikode district also. And Kozhikode didn't have any fatality because there was an anticipatory evacuation. People were moved out. Some houses got damaged. But here, the landslide in itself originated about 6 kilometers away in the forest, in a pristine, non-inhabited area. And the material moved down a river and came and piled up in an area where it was never anticipated to come and pile up. So there was a turn that the river took, and the river itself has widened, and it has become 2 rivers. So 2 streams are flowing in that area as of now. So that is where the situation is. This is quite an unprecedented situation in terms of the event. The event started in a high hazard zone, and there in and around that area, 3 colonies were evacuated yesterday itself. But this came and landed in a completely inconspicuous opposite hill on the opposite shore of the river, far away.
That's what has happened. So what is challenging in rescue operations? The climate? The weather is a difficult situation there. There is a lot of slush and mud, so crossing over has become a difficult part. There was one major bridge there. The bridge got kind of disconnected. NDRFS with great difficulty tied up ropes and is trying to move in people to the other side so that rescuers can go there and fetch people out. That is where we are. कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने केरला में लैंडस्लाइडिंग पर गम का इजहार किया है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मैं वायनाड एम्पाड़ी के करीब बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग से बहुत अफसुर्दा हूँ। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जो फंसे हुए हैं इन्हें जल्दी बहिफाजत निकाल लिया जाए। इन्होंने लोकसभा में भी इस मामले पर बात करते हुए महलूकीन और जख्मियों के लिए ऐलान करदा मुआवजे में इजाफे का हुकूमत से मुतालबा किया है। Thank you, Speaker, sir. So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात इस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक LAC पर चीन की इश्तियालंगेज़ी जारी रहेगी। What are my views on China? That by itself will take a very long time. But I would only say this, more than we obviously have views on China which are based on our experience. Right now, I have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, during the COVID, China brought very large forces to the border areas between India and China in violation of agreements that we had with China. And that created, tensions. It led to a clash. There were people who died on both sides. And the consequences of that, because the issue has not been resolved fully, continue. So right now, if you ask me, how are your relations with China? I have to tell you they are not good, they are not normal right now. But obviously as a neighbor we hope for a better relationship, but that can only happen if they respect the line of actual control and if they respect agreements which they have signed in the past. Now, but when we look at the larger region, I would say it's not just China. We would look at any country, does that country contribute to global good, to stability? Are their political and economic activities helpful for a prosperous, free and open region? So there would be some I would say conceptual metrics which we would use for any country when making a judgment whether in our view at this time are the policies of those countries helpful, or do they align with the direction we are going or not. And I think there some of the issues which you yourself mentioned, I think those are certainly issues that merit our attention. उधर चीन के साथ मसले को कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने ऐवान में उठाया और कहा कि हुकूमत को चीन के मुसलसिल दरअंदाजी के बारे में ऐवान को तफसीलात बतानी होगी। इस मसले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल और गोगोई के माबैन लफ्जी जंग देखने में आई। भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया। तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। मैं सीधा आरोप लगाता हूं यूपीए के ऊपर। यूपीए के समय
देश को कमजोर किया गया। वो एमओयू क्या था? वो एमओयू चाइना के साथ जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज तक पता नहीं क्या था। मंत्री महोदय बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, पर जिस प्रकार का उन्होंने आर्थिक स्थिति बनाई है, अब भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। अब अभी अरविंद सावंत जी ने कहा कि चाइना से और वीज़ास की मांग मंत्रालय कर रही है और ये उन मंत्रालय को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि हमको और वीज़ास चाहिए। कुछ दिन पहले आपका प्रश्न क्या? मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ दिन पहले यही लिखा कि चाइना से हमको और एफडीआई हमको लेना चाहिए। तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। तो देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दो अलग बातें क्यों करते हैं? 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया। वो भूल रहे हैं कि कितना विफल उनका राज्य रहा कि भारत को पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। हाल में पिछले हफ्ते एक सवाल के जवाब में हमारे मंत्रालय ने साझा किया था देश को कि कैसे कांग्रेस के समय जो इंपोर्ट है, जो आयात होता है, वो इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा कि कहाँ $4 बिलियन का चाइना से आयात होता था, वो बढ़ के लगभग 40-45 बिलियन तक गया। यानी 10 गुना से ज़्यादा आयात चाइना से इनके समय में बढ़ा, जबकि हमारे समय में जो बढ़त हुई वो मात्र 2-2.25 गुना हुई। हमने नियंत्रण में लाया, हमने अलग अलग स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ यूपीए के ऊपर, और आज के दिन उनका नाम बदल गया, क्या बोलते हैं, इंडी। आजकल इंडी अलायंस बनी है, पर यह यूपीए ही है। यूपीए के समय देश को कमजोर किया गया। हमें आज तक पता नहीं वो एमओयू क्या था। वो एमओयू चाइना के साथ जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज तक पता नहीं क्या था। क्या उसके कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट यूपीए के समय 30 गुना बढ़ा? ये यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चाइना पर भी लगाम लगाया, निवेश पर भी लगाम लगाया। जहाँ तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट एटोनमस रिपोर्ट लाते हैं। उस रिपोर्ट का उनके विचार है कि भारत की सरकार का अभी की स्थिति में एट प्रेजेंट कोई बदलाव नहीं है। जो निवेश चाइना से आता है उसको प्रेस नोट 3 के तहत चेक किया जाता है, और जहाँ जहाँ हमें उचित नहीं लगता है उसको रोका जाता है। भारत सरकार की पॉलिसी आज भी वही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मात्र सुझाव। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में रूस और यूक्रेन जंग में हिंदुस्तानी नौजवान की मौत का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान में बात करनी होगी। जी सर, आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं श्रेया यादव जी, तानिया सोनी जी और निविन दालविन जी के परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो उनके साथ हुआ, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ना हो, और वो बच्चा जो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हुए आता है उसके साथ तो कतई ना हो। सर, मैंने जब ये अखबार आज पढ़ रही थी, उसी फ्रंट पेज पे 22 साल के युवा हैं हरियाणा के रवि माउन, उनके बारे में भी पढ़ा। वो फ्रंट पेज पे ही है इसी अखबार के, जिनकी मौत हो गई रशिया के वॉर में लड़ाई लड़ते लड़ते। 22 साल के वो भी युवा हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी, एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो देश में हो रही है, जिसके चलते एक युवा को मजबूर होना पड़ रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भागीदारी लें और वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे हैं। हरियाणा के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठे हैं। उम्मीद थी कि हम सब उस पर भी चर्चा करेंगे कि जब हम 267 लाते हैं नीट पे 24 लाख जो बच्चे हैं, उनके जो फ्यूचर हैं उनके बारे में उस पर भी चर्चा करें। पर अच्छी शुरुआत है, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हम वो चर्चा करेंगे। सर, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पे बात की गई थी पापा ने किस तरीके से वॉर रुकवा दी, और जो युवा हैं वो वहाँ से यूक्रेन से इंडिया लाए गए। वो बच्चे वापस तो आ गए इंडिया, पर वहाँ पर उनको ये ब्रिज कोर्स नहीं दिया कि किस तरीके से वो अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर सकें। इतना उनको मजबूर कर दिया कि वो वापस यूक्रेन गए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और ये दूसरे युवा हैं हरियाणा के, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में,
उनके परिवार ने अपनी लैंड बेच दी इस उम्मीद में कि वो जो लैंड के का पैसा आएगा वो एजेंट को पे करेंगे और वो जाकर दूसरे देश में जाकर वो कमाई करेंगे, पर उनको बरगला कर उनको रशिया में उनकी आर्मी में डाल दिया गया। ऐसे बहुत अनगिनत युवा हैं, अनगिनत युवा जिनकी मौतें हो गई हमें पता ही नहीं है। उसी तरीके से सर, हमने बाकायदा, हमारी सरकार ने इजराइल के साथ ऐसा ही एक साइन किया है, ट्रीटी साइन की है कि हमारे युवाओं के पास यहाँ पे रोजगार नहीं है तो जाइए इजराइल पे बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़िए, उनकी वॉर हम लड़ेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पे शहीद होंगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। इसका रूट कॉज एक ही है सर, 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट। जो युवा उम्मीद करता है कि उनको आर्मी में भर्ती मिलेगी, उनको अग्निवीर दे दिया जाता है। जो युवा उम्मीद करता है उनको रोजगार मिलेंगे, उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दे दिया जाता है। तो अगर युवाओं के बारे में व्यापक चर्चा करनी है तो इस इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, जहां पे सरकारें हों, सरकारी नुमाइंदे हों और साथ ही साथ ये कोचिंग सेंटर से लेकर ये पूरा इकोसिस्टम जो हमारे युवाओं के सपनों को तार-तार कर रहा है, चूर कर रहा है, उस पे किसी तरीके का संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये ना हो कि 10 लोगों को आपने जेल में डाल दिया, 3 महीने बाद बेल दे दी और फिर वर्क एज यूजुअल चल रहा है। तो इस पे गंभीर, मैं मानती हूँ, चर्चा होनी चाहिए और रेगुलेशन जो सब मांग कर रहे हैं उस रेगुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। मोदी ने आज एक पोस्ट बजट यूनियन कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई इजलास से खिताब किया और बीजेपी हुकूमत के तहत हिंदुस्तान की तरक्की को काबिल फ़ख्र करार दिया। इन्होंने मजीद यूपीए हुकूमत के कैप एक्स नमो का मुआयजाना किया और सरमाया खर्च को 11,10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में हुकूमत की कोशिशों की तारीफ की। कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 2004 टू 2014 के 10th ईयर में कैपेक्स किसी तरह दुगुने पर पहुंचा था, जबकि हमारी सरकार में कैपेक्स 5 गुना ज्यादा से बढ़ा है। 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2004 जब अटल जी की सरकार गई, 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपए था, 90,000 करोड़ रुपीस। 10 साल सरकार चलाने के बाद, यानी 2014 में यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई थी, यानी 90,000 से 2 लाख करोड़। और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी 2004 टू 2014 के 10th ईयर में कैपेक्स किसी तरह दुगुने पर पहुंचा था, जबकि हमारी सरकार में कैपेक्स 5 गुना ज्यादा से बढ़ा है। और आप अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे
तो भी आपको सटीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के एक इंस्टीट्यूट में गुज़िश्ता दिनों पेश आए हादसे के खिलाफ तुलबा का एहतजाज आज भी जारी रहा। तुलबा का कहना है कि खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं और आला हुकाम उनके मसले पर तवज्जो देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। For the past 25 years, I've been seeing this kind of things already happening here. यहाँ पर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था, the reason is यहाँ पर वाटर लॉगिंग का रीज़न क्या है। यहाँ से झंडे वालन का जो इंक्लाइन है, it is 3 to 4 डिग्रीज। यहाँ से राजेंद्र प्लेस का जो इंक्लाइन है, that is also 3 to 4 डिग्रीज। पूरा का पूरा पानी बह के इस साइड ऐसे टच होता है। दिस इज अ लो ग्राउंड एरिया। यहाँ के जो सीवर्स थे, इसके इस सड़क के नीचे ही सीवर्स थे, दे आर ब्लॉक्ड। इतना सेल्टिंग हुई है, इतना बारिश का पानी आया है, इस सड़क को खोद के मेरा ख्याल है 10 साल के अंदर 2 बार ही खोदा गया होगा। द सीवर लाइंस विच आर सपोज टू बी चेंज्ड, पहले यहाँ पर 2.5 स्टोरीज मकान थे, अब वो 4 स्टोरीज मकान हो गए हैं। जो रियलिटी चीज़ है, यहाँ के जो सीवर की लाइंस है, दे आर चोक्ड बिकॉज उनका थिकनेस, उनका डायमीटर इतना बड़ा नहीं है, दे कैन अकोमोडेट सो मच वाटर। उसके बाद सर कोचिंग की बात है, बेसमेंट के अंदर इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द फायर एनओसी एंड एज पर द एमसीडी नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस। उसके बाद 4th फ्लोर से ज़्यादा ऊपर बिल्डिंग की हाइट्स है, 15 मीटर इज द सिचुएटेड हाइट जो एमसीडी और डीडी अलाउ करती है। 15 मीटर से ज़्यादा हाइट है, फायर एनओसी कैसे मिल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स चल रहे हैं इनके, क्या फायर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, क्या इनके फायर एक्सटिंग्विशर्स चल रहे हैं? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अभी आप सर्वे करो, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी वर्किंग। एवरी ईयर आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर रिन्यू होता है, उसके बाद इसका लाइसेंस रिन्यू होता है। हर कोचिंग सेंटर कमर्शियल स्पेस रन करते हो। दिल्ली जल बोर्ड जो भी कमर्शियल वाटर यूज़ करता है, एनी कोचिंग कमर्शियल वाटर यूज़ करती है, 60% उसमें ड्रेनेज चार्ज है, सीवरेज। नाउ पीपल आर ब्लेमिंग कि सिर्फ एमसीडी का काम है। सर डीजेबी भी है, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसीएस भी है। बीएसीएस के यहाँ लाइंस चलती हैं, एक्सपोज्ड वायर्स हैं यहाँ पर 440 वोल्ट्स की, जो अगर आप अपना पैन करेंगे कैमरा बैक साइड पे देर आर मल्टीपल वायर्स विच आर स्ट्रैंगल्ड एंड विच कैन कॉज अ ह्यूज शॉक, ह्यूज फायर मिसहैप कभी भी हो सकती है। और एक और नई बात नहीं है, आई हैव बीन सीइंग दिस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। इस बार डेथ हो गई, द रीज़न पीपल आर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि अब मरने की बात आ गई है। जब मर जाए लोग, वो भी बेसमेंट में चोक होके, 1 लाख गैलन से ज़्यादा पानी एक बेसमेंट में भरना, वो भी 12 फुट हाई, डबल बेसमेंट में, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क सर। विद इन 10-15 मिनट्स तक इतना पानी जा रहा है, पीपल आर ब्लेमिंग द थार आई है वहाँ पर। इट्स नॉट द ओनली रीज़न। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस झारखंड के चकरधरपुर रेलवे डिवीजन के बारम्बू रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में 6 अफराद के जख्मी होने और 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। रेलवे मुलाजिमीन के साथ ARM, IMDM के और KCP की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। चकरधरपुर रेलवे डिवीजन के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद चकरधरपुर रेलवे डिवीजन के हुक्काम, रिलीफ ट्रेन और कई एम्बुलेंसेस को ज़िले इंतज़ामिया ने मौके पर भेज दिया है। इंतज़ामिया ने वाक़े के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया है। ट्रेन हावड़ा से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आ रही थी। इस ट्रेन कहीं चक्रधरपुर स्टेशन के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अभी इसमें इसके लिए जो है वो सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने अपने अलग अलग स्टेशनों पे हेल्पलाइन नंबर्स की सुविधा प्रदान की है, जिनमें प्रामुख्य से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कल्याण, नागपुर, भुसावल, बडनेरा, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ जहाँ पे भी यात्री वहाँ से यात्रा कर रहे थे, जहाँ पे भी वो उतरने वाले थे, उन सभी स्टेशनों पे लगभग मध्य रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है। ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी दिए गए हैं। इसमें मुख्यतः जैसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात करें हम लोग, तो उसका जो नंबर है वो दिया गया है 02222694040। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ वो नंबर 02222694040। और इसी के साथ साथ में सारे ही स्टेशनों पे, अलग अलग स्टेशनों पे हेल्पलाइन नंबर्स हमने इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। जहाँ तक अभी खबर मिली है उसके अनुसार वहाँ पे जो भी यात्री स्टैंडर्ड थे उनको अपने नज़दीकी स्टेशन पे ले जाके वहाँ से एक विशेष ट्रेन की जो सुविधा है वो रेलवे द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें करीब काफ़ी सारे यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाया गया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम कर दी है। दोनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ये जीत ली और दोनों को शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम किया।
हिंदुस्तानी जोड़ी ने ये मैच सख्त मुकाबले के बाद 16-10 से जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के चौथे रोज शायकीन की नज़रें एक बार फिर मनु भाकर पर मरकूज थी। वो आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड ब्रॉन्ज मेडल मैच में हिंदुस्तान के सरबजोत सिंह के साथ खेलने आई थी। इससे कबल मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांसे का तमगा जीता था। वो यह तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी शूटर बनी थी। मनु ने फाइनल में कल 221.7 पॉइंट्स हासिल किए थे। मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन? यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुँच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आपकी मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करके आपने इसको अचीव करने में आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप पूछिए मुझसे क्या पूछेंगे। मैं सुबह से हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो ज़िंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं हर रोज़ बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज़ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तब करने की, भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति, और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने, सच्ची में। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों को कौन देगा? वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से 80 से ज्यादा हलाकतें, सैकड़ों दबे होने का खदशा, राहतकारी ऑपरेशन जारी। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने किया रंज का इजहार, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। राहुल गांधी ने मुआवजे में इजाफे का किया मुतालबा। हावड़ा मुंबई मेल झारखंड में हादसे का शिकार, 18 डब्बे पटरी से उतरे, कई मुसाफिर जख्मी, 2 की मौत। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने रकम की तारीफ, एक ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी बन गई। सरबजोत सिंह के साथ किया कमाल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।